Good afternoon and welcome once again. And we have a very special guest today, Dr. Prakash Moghe. Hi. Yeah, he's here with me, right? So all these days, right, from 7th till 17th, we are all meeting every day at 2:30, and we are looking at different life skills, right? And these are some very important skills to build your confidence. And आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ चॉइसेस इन लाइफ ओके सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक इट इज़ वेरी important for us to understand that yes, we do have a choice. We also have a choice to be happy or sad in life, which we don't realize at times, particularly at your age we don't realize. We have a choice to be happy or we have a choice to be sad also. So life is all about choices. और ये अगर कॉन्सेप्ट हमें समझ में आते तो बहुत सारी चीज़ें हम चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर सकते हैं. इनफैक्ट वी कैन लव दोज चैलेंजेस एंड वी कैन actually thrive on it and feel excited. So with that, I'm going to hand over the mic, the platform to Moghe sir. He's a very senior faculty. We are very lucky to have him here. And before I'm going to say the thank you note here only. Thank you, sir, for coming It's to my IPS. pleasure. Yeah, and we are going to see him for the next 3 days. That is today, tomorrow, and day after. All the 3 sessions. I request all of you. In fact, I urge all of you that please join us in this session, because these are some very important learnings in life, and you will learn something, and I'm 100% sure about it, that it's going to help us, all of us. Okay, so thank you, enjoy, and over to sir. Thank you very much. Okay. Yeah, thanks. Thank you, Dr. Chhabbar. It's a pleasure to meet youngsters, and today we are discussing a topic which is the importance of choices in life. So I'm sure all of you are college students and all of you are enjoying life, but this discussion जो आज हम चर्चा करेंगे ये आपको एक अलग लेवल पे ले जाएगा, and not only your today's life, it will help you in your entire life. So I'll request you to take note of things as you like, and I have got some interesting video also for you. So all in all, it's going to be a very interesting, inspiring and educating session for you, and I'll request you to feel free to ask questions. I'll give you time in between to ask questions as well. So first of all, little things about me. My name is Dr. Prakash Moghe. I'm not the medical doctor. I'm a PhD, doctorate in education, एंड 1984 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ. तो देख लीजिए आप कितने साल हो चुके हैं, करीब 40 इयर्स हो जाएंगे अब. और मे बी इन इंदौर आई बीन टीचिंग सिंस लॉन्ग, और हो सकता है कि कई आप में से स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मेरे स्टूडेंट रहे हों, बिकॉज दैट हैज स्टार्टेड हैपनिंग नाउ दैट इट इज़ द सेकेंड जनरेशन विच आई एम टीचिंग. सो ये मुझे बहुत खुशी होती है कि टीचिंग लाइन का एक अपना आनंद होता है और इतने बच्चों की लाइफ को हम टच करते हैं. तो ये हमारे लिए it was by choice. I came to teaching by choice. I was a merit holder with MSc Statistics, and it was a very nice career that time. But I decided to do B.Ed, M.Ed, UGC NET and a PhD in education. और इस तरह से, and I have some very interesting link with IPS itself. In my early years of career in Indore, I was associated with the IPS Math Center, and we did a lot of good things together here. So this is about me, and I like to help youngsters. I like to help people in their career, so that way also you can feel connected, and after this talk also you can interact with me. Toward the end I will give you my contact details so we can have interaction further. And I welcome you all to the class. Now I see good number of students there in the class, so I welcome you all to the class, and I am told that you are all IPS academic students of become first year, and which is a very important year in your life, क्योंकि स्कूल छोड़ के आप कॉलेज में आए हैं और पेंडेमिक के कारण कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल कैंपस इंटरेक्शंस आपके नहीं हो पाए हैं. जो एक कैंपस का मज़ा होता है, जो स्टूडेंट मिलते हैं आपस में, पार्टियां करते हैं, फ्रेशर पार्टी करते हैं, वेलकम पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब आनंद आपके जीवन में इतना ज़्यादा हो नहीं पाया होगा बिकॉज ऑफ पेंडेमिक. बट स्टिल it's an important year in your life
और इसलिए I welcome you on this very important session which we will have today. Okay. So once again formally I welcome you all and feel free to interact. You can raise your hand or I will give you a chance to ask some questions or to react to what I am discussing here. Okay. So now we are going to see, we will see a short video on choices. It's a very interesting video. Look carefully and I will ask you questions on that. So have a look. It's about 3 to 5 minute video. So have a look. मैं ये कह रहा था कि जो वीडियो आपने देखा तो उसमें हमने देखा कि दो अपोजिट नेचर हैं और रिपीटेडली वही एक्टिविटी हो रही है। तो जो हम हैबिट की बात कर रहे हैं, चॉइसेस की बात कर रहे हैं कि यू हैव ए चॉइस टू किक द जिम बैग और टू पिक अप द जिम बैग और यू हैव टू किक द फ्रूट्स और यू हैव टू पिक अप द फ्रूट्स। तो इस तरह से हमारी लाइफ में चॉइसेस होती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश की है। नाउ क्वेश्चन इज कि चॉइस का मसला तब उठता है व्हेन यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप? एक लाइन में मैं बताना चाहूँगा क्योंकि इट इज़ नॉट अ क्लास ऑफ सोशल साइंसेज एज सच, बट डेमोक्रेसी बिगिन्स विद चॉइस। You have choice to choose the government itself first of all, like voting is going on in 5 states right now in India. So you have a voting right, you can choose whom you want to be your leader, and besides this whole list you can see what rights democracy gives us. Democracy gives us the right to speak,
that you have the right to speak, which is a fundamental right in India, but within the ambit of social decency and moral obligations. You can't speak anything which comes to your mind, because there is a angle of social obligation and decency, public decency. These two things are very, very important, which many politicians and many public speakers tend to forget. They speak whatever comes to their mind, और फिर वो कहते हैं कि हमको बोलने की आज़ादी है और ये है वो, ऐसा नहीं. इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ एन आज़ादी विथ सम जवाबदारी. ओके, like right, similarly right, you are democracy gives you a choice to write on any topic. It gives you choice to write as much as you want, as little as you want. You may not write also. Likewise travel. तो ये सब डेमोक्रेसी के हमको राइट्स हैं जो कि हमको. और कोई एनी पॉइंट यू वुड लाइक टू ऐड, लाइक चूजिंग अ करियर. इन इंडिया अभी अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट दैट मच डेवलप्ड. अदरवाइज एडवांस सोसाइटीज़ में ये कई बार होता है कि आप एक एकेडमिशियन थे, कॉलेज प्रोफेसर थे, फिर आप इंडस्ट्री में चले गए, फिर आपने वो भी नहीं जमा, फिर आप खेती बाड़ी करने लग गए, फिर वो भी नहीं जमा, फिर आप ट्रैवल एजेंट बन गए. सो यू कैन डू सो मेनी करियर्स एंड यू कैन ट्राई सो मेनी करियर्स बिकॉज यू हैव अ राइट टू चूज, एंड राइट टू चूज इज देयर बिकॉज डेमोक्रेसी इज देयर. यहाँ पे आई वुड लाइक टू रिलेट टू यू टू वन फ्यू ईयर्स अगो व्हेन USSR was there. When today's Russia, it was called USSR, and it was a big conglomerate of so many countries. So there, even you had to go from Indore to Bhopal, you needed almost a visa sort of thing. The government used to allow or not allow anybody. So you want to travel from one city to another also, you could not do without government permission. Similarly, choosing a career, government used to say you will do farming, then you have to go and do farming. They used to say you will do you will go to military, then you have to go to military. So these choices are not available in a theocratic in a dictatorship country. Where one last funny thing I would like to tell you. So in South Korea, for example, for 7 days there is a mourning, state mourning. 7 दिन तक आप हंस नहीं सकते हो, 7 दिन तक आप पार्टी नहीं कर सकते हो, पूरे कंट्री को. सो ऐसा डिक्टेटरशिप होती है, उसमें कोई चॉइस नहीं होती है. लकीली वी आर इन अ वेरी डेमोक्रेटिक सोसाइटी. Now these are the dimensions in life where we definitely want to have a choice, and we have a choice. I will quickly read them out, although they are very obvious. Like as a young parent, suppose there is some young parent, so let us begin from birth. So as the child is born, there is a choice that what name to keep. Parents, there is often family discussion also, there is often family disputes or discussions or heated debates. किसका नाम ये रखना चाहिए, पहले अक्षर से रखना चाहिए, क्या करना चाहिए. एक बोलता ये रखो, एक बोलता ये रखो. कोई नेम्स की बुकलेट लेके चला आता है इतने सारे नामों की कि इसमें से रखो, उनका नाम दादाजी पे रखो, एंड ऑल दिस थिंग्स. सो दैट इज़ वन प्लेस विच इज़ वेयर लॉट ऑफ चॉइस इज देयर एंड यू हैव टू चूज. सिमिलरली स्कूलिंग, आप बच्चों को स्कूल भेजोगे, स्कूल भेजोगे, स्कूल भेजोगे, क्या करोगे. यू नो दीज डेज एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट चल रहा है विच इज़ होम स्कूलिंग. मीन्स द चाइल्ड डजंट गो टू स्कूल एट ऑल, and child learns on his own. And I have seen one, I will tell you 1 or 2 examples, although time is not much, but I will tell you 1 or 2 examples. I have seen one example where the child never went to school, but at the age of 14 years he produced a nice full movie because he was following the movie making on YouTube, he was following various videos, he was meeting, his parents were pretty influential. So that is the concept of homeschooling, that you study everything at home, and maybe as he was telling, somebody comes to teach you or you go to somebody, but there is no formal schooling, like you don't go 8 hours somewhere and you don't spend 12 years in that. That is the concept. Similarly, career line, which career line will choose, which friends you will have, which special friend you will have, life partners, finances, financial freedom, how you can have financial freedom, kids, how many kids, how to raise them, create wealth and asset. These are the lifetime decisions which we have to, where we have a choice, that you would like to have a fixed income job, or you would like to have a flexible job, or you would like to have no job and do business, or you would like to carry family business, or you would like to have a partnership business. So these are all, but for your age group, for you in particular, this is the important part. So let me focus on these. And these are very, very pretty interesting choices which you have to make.
and with the opening of campuses now, the choices will become more obvious, and you will also have more choices as in physical interaction, direct interaction with each other, and you get to meet so many people in one go, because in the virtual mode you can meet one person on WhatsApp or something, but here in the class you will have 30 people, 40 people and 100 other people around. So, friends, whom do you have friends, how many friends, this is the choice which you have, and you have different category of friend, your colony friend, your other like hobby friends, and your coaching class friends, and so many kind of friends. Then which coaching to go, these are the questions on which you always have a choice, and you have to think that what to do and what to choose from. Similarly, phone, which phone to have, you want to have this category of phone. I do not even know too many phones, so I will not give examples, because you will say that this is outdated already. So, I am not giving you examples of phones, and then definitely once you buy a phone, then there are tariff plans, this company says this, that company says this, and then who will charge whose phone, that is also a big choice is there, and people have a lot of interest in that too. Then there is a question of dresses, another very violent discussion these days going on dresses, that what dresses you can have, what dresses you can put, what you call as formal, what do you call as informal, what do you call as not allowed. This varies from age to age, but definitely this is the place where you have a lot of choice. Then with dresses come accessories, fancy shoes, so many kinds of different fashion things are available, of which I am not much aware, different kind of hairstyles are available, and so many choices are there. And then dating, of course, is another not so much happening place, but still it is there conceptually, and directly indirectly it takes place. Future plans, here also you have a choice. There are, I have seen students who from very beginning, I have seen students who are from say even at their 11th standard or 12th standard, they had decided, I am going to be a CA, or I am going to be on my own business, I am going to start my own business, and they will start meeting people, they will start interacting with people, and they will have a choice, and then they will refine their choice, and gradually they will move toward the choice they wanted to have. And then definitely future social media, let us do some brainstorming. I will suggest some: Facebook, WhatsApp, and Twitter, LinkedIn, Instagram. There are 250 very established brands. Can you believe? We have not counted 10 also. And among in the internet world, and then there is something, I remember, if I remember correctly, HubSpot or something. There is one particular software. There is one particular app which connects your apps. If you have social media, and if you are running a company and you want your social media presence, like you want to make one clip or one comment, and it goes across your Facebook, Twitter, LinkedIn, everywhere, then there is, I think, HubSpot or something, I do not remember exact name, but there is one particular app which helps you to do that. So, that is also very interesting thing, and I think so many young people are there. You can make a list of these and take it as a homework, that at least find out first 25 popular social media brands. So, that could be a kind of homework for you. Tomorrow I will be happy if one of you can tell me at least 25, and there are 250. Let me tell you, I read somewhere that 250 are established. You know what is an established social brand? Established social brand is that which has more than 1 million subscribers, more than 1 million subscriber, and which is a paid subscription as well. I mean, has good revenue model also, and which is funded by different agencies. So, such 250 media are there, and we are hardly counting 5, 6, 7 पे आगे हमारी गाड़ी नहीं बढ़ रही है. So, this is a homework to all of you, that you spend some time and try to find and what is the use? The use is that you will also get choice further. Okay? Being aware of choices. अब सवाल उठता है कि साहब दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेट इतना बड़ा है, आप सिर्फ एक लिख दो कि आप इंटरनेट पे सिर्फ डाल दो कि हैबिट फॉर्मेशन वीडियोस, और आपको हैबिट फॉर्मेशन, तो आपको 1 लाख आर्टिकल उस पर आ जाते हैं, यूट्यूब पे, इस पे, गूगल पे आ जाते हैं, एंड यू आर जस्ट एट ए लॉस. यू नेवर गो बियॉन्ड पेज 1, ज़्यादा से ज़्यादा यू गो टू पेज 2,
and in Google you will find hundreds and thousands of pages are there which are having that particular keyword. तो सवाल ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि भाई क्या चॉइसेस हैं, चॉइसेस हैं तो भी कि नहीं है, और चॉइसेस है तो मेरी कैपेसिटी में कौन सी है और मैं उसको कैसे चूज करूँ. आपको you need to understand. So let us see what are the venues, what are the avenues, what are the places available जहाँ पे जाके हम थोड़ा समझ सकते हैं. देखिए मैं आपको बार बार बोलूँगा, यू आर ऑल इन अ वेरी वेरी फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ करियर, और एक आप बहुत ही टेंडर एज में अभी हो इंटेलेक्चुअली, टेक्निकली यू मे बी एन एडल्ट ऑफ 18 ईयर्स और सो, लेकिन वी आर ऑल, आज भी मैं सोचता हूँ कि आई एम नॉट इन अ वेरी 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 स्ट्रांग पोजीशन. सो देयरफॉर आपको ये सब समझना चाहिए कि हमको चॉइसेस ढूंढने की जगह कहाँ से पता चलेगा. तो सबसे पहले आता है सोशल मीडिया. आई ऑलरेडी डिस्कस ब्लॉग्स. टुडे for any topic and every topic under the sun and even the sun itself, you will find millions and millions of blogs available. आप कुछ भी एक थोड़ा होमवर्क कॉपी में लिख लो या आप माइंड में लिख लो, आज देखना करके आप कुछ भी बोल लो. टेक एनी सपोज मेडिटेशन, एंड जस्ट इन मेडिटेशन अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, ऐसा कोई बहुत ही स्पेसिफिक भी आप ले लो तो भी आपको सैकड़ों ब्लॉग मिल जाएंगे. एंड डेफिनेटली यू फाइंड how to get rid of bad habits, you will get another set of blog. You write how to remain healthy, you will set another. So whatever you do, whatever you want to know, there are blog की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि you come to know, you get in touch with the most famous person in the world free of cost. जिन सेलिब्रिटीज़ को आप फोटो में देखते हो, मीडिया में देखते हो, जिनके आप आराध्य देव जैसे आपके हैं, वो आपको फ्री में मिल जाते हैं ब्लॉग के ऊपर, और वो भी चाहते हैं कि आप उनसे इंटरेक्ट करें. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग, आई कैन हेल्प यू इन दैट. उस पर कभी करेंगे ऐसे सेशन का मौका लगा तो. बट राइटिंग ब्लॉग्स मेक्स यू वेरी वेरी पॉपुलर, और आपको चॉइसेस पता लगती है. जितने तरह के आप ब्लॉग पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो व्हाट आर दी डिफरेंट चॉइस. दिस इज अबाउट राइटिंग. सिमिलरली वीडियो ब्लॉग्स, देर आर वीडियो ब्लॉगर्स, दे हैव प्लेंटी ऑफ टूरिज्म के बारे में हुआ, या हाउ टू लिव बैग पैकिंग करके आप टूरिस्ट के लिए निकल जाओ, फिर आप एक किसी पैकेज को लेके टूरिज्म पे निकल जाओ. अभी तो वो इवान मस्क जो है वो तो आपको चांद मंगल पे कहाँ भेज रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट. सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन एक्सप्लोर चॉइसेस थ्रू ब्लॉग्स. ब्लॉग्स गिव यू, वीडियो ब्लॉग्स गिव यू most eminent person, most famous person available to you right at your fingertip. And आप विवेक बिंद्रा को बोलिए, आप किसी भी बड़े आदमी को लीजिए, और आप एक मिनट में आप इतनी प्रॉम्प्टली रिप्लाई करते हैं. उनके पास बड़ी बड़ी टीम रहती है. आई विल टेल यू वन नेम, सेठ गोदिन इज़ अ वेरी वेरी वर्ल्ड फेमस मैनेजमेंट कोच एंड मैनेजमेंट गुरु, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स के एडवाइजरी हैं, तो वो ब्लॉग्स लिखते हैं. तो यू विल बी अमेज्ड टू नो कि मेनी टाइम्स आई रीड हिज ब्लॉग, और फिर उनके पूरे ब्लॉग को पढ़ के, लाइक 2-3 पैराग्राफ का ब्लॉग है, उसको पढ़ के मैं कोई 2 लाइन की कमेंट करता हूँ. सो इफ़ आई हैव कमेंटेड इट से 6:05 पे अगर मैंने कमेंट किया है, तो मैक्स टू मैक्स 6-10 तक उनका जवाब आ जाता है कि थैंक्स डॉक्टर, इट्स वंडरफुल आइडिया, आई ऑल्सो गॉट न्यू इंसाइट. इस तरह की उनके रिप्लाई आते हैं जो कि वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटीज़ हैं. सो दैट इज़ हाउ you get connected. I think somebody is saying something. कोई कुछ कह रहे हैं क्या? I saw somebody opening camera and saying something. Okay. Similarly, articles. So articles की पूरी आर्टिकल एक पूरी e-magazines निकलती है, e-magazines निकलती हैं, which are having plenty of articles on almost anything. मतलब whether it is gardening or it is embroidery or it is इवन व्हाट यू कॉल इज रॉक क्लाइंबिंग. जो आपके दिल में आए आप पढ़ सकते हो, और जितना आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अरे ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है. जो चीज़ आप, आई मीन यू नो देर आर मेनी कंट्रीज, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट देर आर मेनी कंट्रीज वेयर यू डोंट नीड वीज़ा टू गो टू विजिट दैट कंट्री. आप टिकट के पैसे आपके पास है, आप जैसे इंदौर से भोपाल जाते हो, ऐसे आप उस कंट्री जा सकते हो. इंडियन पासपोर्ट इज़ वैलिड देयर एंड यू डोंट नीड अ वीज़ा. नेपाल ऑफ कोर्स वो तो अपना भाई है, मतलब देयर इज नो इशू इन दैट, बट अदरवाइज in there are many other countries also where you don't need visa. If you have Indian passport, you can just go and visit there. So like this, you come to know all this only once you are
इनटू दैट। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आपकी चॉइसेस बढ़ती जाती हैं, और जैसे आपकी चॉइस बढ़ती जाती है उतना आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, ओके, सो आई कैन गिव दिस लेक्चर लाइक दिस फ्रॉम हियर, आई कैन रिकॉर्ड द लेक्चर एट माई होम एंड आई कैन टेलीकास्ट फ्रॉम देयर। तो ऐसे एवेन्यूज़ बहुत सारे, हमको चॉइसेस जब होती है तो जाके हम उसमें से चूज़ करते हैं, एंड डेफिनेटली वंस यू डू ऑल दिस थिंग्स देन यू गेट नोटिस्ड आल्सो। एक चॉइस तो आपको ये है कि आप घर बैठे रहो और आप बोलते रहो आई एम वेरी स्कॉलरली पर्सन, या मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है और मेरी जैसी इंजीनियरिंग ड्राइंग कोई नहीं कर सकता है और मेरे जैसा बढ़िया डिज़ाइन कोई नहीं कर सकता है, बैठे रहो आप। सेकेंड थिंग, देन सेकेंड चॉइस इज यू स्टार्ट पुटिंग ब्लॉग, आप ब्लॉग पे डालना शुरू करो कि ये मेरे ड्राइंग देखो, आपको पसंद आती है क्या, डिज़ाइन पसंद आती है क्या। ठीक है, 4 लोग कॉपी करेंगे लेकिन 100 लोग पढ़ेंगे भी तो उसको। सो दैट इज़ हाउ this whole game in the modern society, the whole game of choices is there, that you have choices but you need to explore। और एक्सप्लोर करने का दूसरा तरीका है मैगजीन्स, ई मैगजीन्स होती हैं, ई जर्नल्स होते हैं, ई न्यूज़ लेटर्स होते हैं, ऐसे ज़माने भर के होते हैं। देन देर इज़ अ फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स फ्रेंड्स से भी हम चॉइसेस डिस्कस करते ही हैं, बहुत सारे लोग सारी बातों पे डिस्कस करते हैं दोस्तों से, तो वो एक तरह की चॉइस ही होती है। आप बोलते हो ये अच्छा है, ये मूवी अच्छी है कि वो मूवी अच्छी है, तूने वो देखा क्या, वो वहाँ पे अच्छा है कि वहाँ पे अच्छा है। सपोज यू वांट टू प्लान अ वेकेशन, सो यू प्लान टू, यू हैव चॉइस कि सपोज एक कुछ भी बोल रहा हूँ, मालदीव जाना है या सपोज अंडमान निकोबार जाना है, गोवा जाना है, और थोड़ा और एडवेंचरस हो गए तो सिंगापुर जाना है। तो फिर आप आपके फ्रेंड से, रिलेटिव से बात करते हो, भाई कौन सा अच्छा है, आपका अनुभव क्या रहा। सो व्हाट इज़ ऑल दैट, दैट इज़ नथिंग बट बीइंग अवेयर ऑफ चॉइसेस, कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, इंटरटेनिंग कौन सा है, पर्पसफुल कौन सा है, आपके कितने पर्पज से सर्व हो रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेम थिंग गोज टू सोशल कॉन्टेक्ट्स। व्हेन यू हैव सोशल कॉन्टेक्ट्स, आपके जितने समाज के ग्रुप होते हैं, जैन समाज, सो मेनी इन इंदौर, तो आई थिंक देर आर मोर देन सो मेनी सोसाइटीज़, डिफरेंट सोसाइटीज़ आर देयर, जहाँ पे अलग अलग तरह के फंक्शंस होते रहते हैं, उनके गेट टुगेदर होते रहते हैं, कपल्स के प्रोग्राम होते रहते हैं, बच्चों के अलग होते रहते हैं। तो लाइक दिस, सो दीज आर ऑल नथिंग बट द अवेयरनेस ऑफ चॉइसेस, एवेन्यूज वेयर यू कम टू नो कि भाई मेरे पास ये भी उपलब्ध है, ये भी उपलब्ध है, ये भी उपलब्ध है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन नो चॉइस इज देयर। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है। मतलब अगर आप देखोगे तो आपकी ज़िंदगी में सारे झगड़े घरों में, वेदर इट इज़ अमंग द स्पाउसेस, पेरेंट्स, माता पिता के झगड़े, आप मतलब मतभेद झगड़े जो भी आप देखते रहते होंगे, या पापा के, चाचा के, बिजनेस के जो भी डिस्कशंस हैं, या फैमिली में जो भी डिस्प्यूट और डिस्कशन होते हैं, उनमें सब यही होता है कि जब आपको चॉइस नहीं होती है तो इट लीड्स टू व्हाट, एनार्की। एनार्की मीन्स जिसके जो दिल में आया करो। एनार्की मीन्स हम गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, हम किसी रूल को नहीं मानेंगे, बस हम बोलेंगे वो होगा। दैट इज एनार्की। सो एनार्की मीन्स समथिंग वेयर you don't believe in any system, where you don't accept any system, and where you don't recognize any system। और आप बोलोगे, सोचते हो कि हम बोलेंगे वही होगा और हम बोलेंगे वही कायदा है। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड टोटल एनार्की। अगर आप चॉइस नहीं देते हो लोगों को तो उसका एक होता है, फिर सड़कों पे आंदोलन हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। दैट इज हैपेंस वन थिंग, फ्रस्ट्रेशन। एक बच्चा है, उसको अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, बचपन से अच्छा ड्राइंग कर रहा है, उसको आर्टिस्ट बनना है। आपने उसको मतलब आर्टिस्ट की एग्ज़ाम तक नहीं दिलाई, आपने उसको कुछ भी एक्सपोजर नहीं दिया और आपने कहा नहीं तुमको तो डॉक्टर बनना है, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। इट सेट्स इन अ वेरी वेरी सीरियस फ्रस्ट्रेशन, दैट समबडी बिकम्स वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि भैया मेरे को चीरा लगाना पसंद नहीं है, मेरे को ब्लड देखना पसंद नहीं है, और मुझे ये कुछ भी पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा डॉक्टर बन के, और बनूंगा कैसे पहले, तो वो बन गया तो क्या करूँगा बन के मुझे। सिमिलरली अक्सर घरों में होता है, नई नई शादियों के बहुएँ आती हैं, वो अपने एक सर्टन बैकग्राउंड से आती हैं, उसके बाद में एक सर्टन बैकग्राउंड, नए बैकग्राउंड में आ जाती हैं, तो उनको उसके हिसाब से ढालने के लिए कंपलसरी अगर किया जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखे जाते हैं, चॉइस नहीं दी जाती है, तो क्या होता है, इट सेट्स इन फ्रस्ट्रेशन। सो दैट इज़ दी बिग वन ऑफ द रीजन्स हमारी सोसाइटी में जो भी हम इतने डिस्प्यूट फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं,
उसमें आप कई बार डीपली कहीं जाएंगे तो आप देखेंगे कि समवेयर दैट इज द रीज़न, दैट कुड बी द रीज़न दैट यू आर हैविंग नॉट गिविंग चॉइसेस वेयर यू शुड हैव गिवन. फिर आता है एंग्विश. एंग्विश मीन्स अनएक्सप्रेस्ड एंगर. ऐसा गुस्सा जो आप उबल रहे हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो. जैसे आगे सबके माइक म्यूट कर दूं और मैं बोलूं हाँ बोलो क्या बोलना है आपको, तो क्या होगा, भैया माइक तो यहाँ से म्यूट कर रखा है और मैं बोल रहा हूँ बोलो जो बोलना है. तो क्या होगा, आपको एक बुरी तरह से एक एंग्विश आएगी कि ये कैसा व्यक्ति है, मेरा माइक तो बंद कर रखा है, आप बोल रहा बोलो. जैसे कई बार होता है ना कि बोलता है हाँ चलो भाई तुमको क्या चूज़ करना है बताओ, लेकिन पैसे मेरे पास है नहीं, तो भैया क्या की चॉइस है फिर ये. तो ये दिस आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एंग्विश दैट यू आर क्रिएटिंग न्यूसेंस एंड बिकॉज ऑफ योर अथॉरिटी. एक छोटा सा बच्चा है 4 साल का, उसको एक थप्पड़ आपने मार दिया तो वो आपसे लड़ नहीं सकता है ना, आपको प्रोटेस्ट कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है, बुरा मान सकता है. तो वो उसके अंदर जो एंगर है, दैट एंगर बिकम्स रियली वेरी वेरी, इट कंसोलिडेट्स. वो धीरे धीरे उसके मन में गुस्सा जमा होते जाता है. दैट इज एंग्विश, दैट यू आर फीलिंग एन अनएक्सप्रेस्ड एंगर, कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो पर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है. डिप्रेशन इज द अदर एंड. फिर होते होते क्या होता है, अरे मेरी तो तकदीर ही ऐसी है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि आपकी सुनता है नहीं वो, तो धीरे धीरे आपको डिप्रेशन में आप आ जाते हो. और ये उसका बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस है कि ये वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कि आप किसी की बात सुनते नहीं हो, किसी को चॉइस देते नहीं हो, तो धीरे धीरे वो लोग फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं. बच्चा कह रहा है कि मुझे ड्राइंग बनाने दो, वो कह रहा है कि मुझे थोड़ा क्रिएटिविटी दो, थोड़ा मुझे बाहर जाने दो, और आपने तमाम तरह के उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि नहीं तुम तो यही करो, फिजिकल जिम जाओ. आई हैव सीन वन पेरेंट, बच्चा है 10-12 साल का, 5 बजे उसके ट्रेनर आ जाते थे उसको और दौड़ा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, पलासिया से दौड़ाते हुए चले आ रहे हैं उसको राजवाड़े तक, फिर राजवाड़े से पलासिया तक, एवरी डे. सो इवेंचुअली बच्चे को कोई चॉइस तो होती नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर उसने जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी पावर आई, तो उसने कहा नहीं उठना, जाओ क्या कर लोगे आप, कितना मारोगे. तो ये समाज में हो रहा है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है. जैसे कई पेरेंट देखते हैं कि भाई क्रिकेटर ने देखो इंदौर के 15 करोड़ में बिक गया, उसने इतना कमा लिए, तू भी क्रिकेटर बन जा. अरे कहाँ से क्रिकेटर बन जा, उसको धूप में खड़ा होना पसंद नहीं है, उसको धूप में खेलना पसंद नहीं है, ही कैन नॉट स्टैंड द सन. अब आपके लिए कोई छाँव में तो क्रिकेट होगा नहीं, लेकिन बच जाओ क्योंकि हम चाहते हैं, कोचिंग भेजेंगे उसको किट ला के दे देंगे. अरे बट ही डजंट वांट. सो फिर क्या होगा, वो ड्राइंग के लायक भी नहीं रहेगा, क्रिकेट के लायक भी नहीं रहेगा, जिस भी लायक था वो भी नहीं रहेगा. सो दिस एग्जैक्टली what is happening to many people. They are under severe depression because they don't have a choice, and whatever choice they want उसके उनको दर्शन भी नहीं हो रहे हैं, कि भाई चलो 6 महीने बाद कोई उम्मीद जग रही है कि चलो कोई लग रहा है कि भाई हो जाएगा, 1 साल बाद हो जाएगा या 3 महीने बाद हो जाएगा. तो धीरे धीरे वो दे सल्क एंड देन दे गेट इनटू फीलिंग ऑफ गिल्ट, डिप्रेशन, ये सब निगेटिविटी में चले जाते हैं. और अगली स्टेज आती है क्राइम्स. ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो आपको लाइन से दिख रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं. फिर आदमी क्राइम की तरफ चले जाता है कि चलो भला तो हो ही नहीं रहा, बुरा करके देखते हैं क्या होता है, कि भाई इसे तो कोई पहचानता नहीं है, 2-4 को थप्पड़ मारो तो 4 जने पूछेंगे भाई क्यों मारा. सो लाइक दिस स्मॉल क्राइम स्टार्ट एंड देन they become ultimately criminals, and then lot of crimes take place. One of the reasons is this also, that you don't give choice to do what they wanted to do and you force them to do which they never wanted to do. तो इस कश्मकश में, इस झंझट में फिर वो पैसे चुराना शुरू करते हैं, फिर वो छोटे मोटे, फिर वो जैसे आपने उन पर बॉसिंग किया, वो अपने छोटे भाई बहनों पे बॉसिंग करना शुरू करते हैं, वो अपने पड़ोसियों के बच्चों पे बॉसिंग करना शुरू करते हैं, एंड अ होल सीरीज ऑफ, वो ब्लैकमेल करते हैं. आई हैव सीन किड्स ब्लैकमेलिंग पेरेंट्स कि ऐसा करो तो ऐसा करूँगा, ऐसा करो तो ऐसा करूँगा, बार्गेनिंग करते हुए पेरेंट्स से. और पेरेंट भी उनकी हर खुशी को सोचते हैं कि हम इनको खुश कर रहे हैं कि ऐसे मान जाएगा, बट अल्टीमेटली कम्स वेरी वेरी सैड अफेयर. एंड देन डेफिनेटली ड्रग्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस. फिर और क्राइम की जब हद हो जाती है तो फिर वो घर से पैसे चुराना, एस्केप देखता है व्यक्ति. वो पॉइंट लिखा नहीं है मैंने, आप भी लिख लो कहीं लिखना हो तो. एस्केप, ESCAPE, एस्केप मतलब भागना. फिर आदमी भागना सीख जाता है. तो ये ड्रग्स है, ये ड्रिंक्स हैं, ये एक तरह से मतलब हैवी, ऑकेजनली
कोई सोशल ड्रिंक करना कभी कभी फिर भी कई लोग मानते हैं ठीक है, लेकिन एज ए हैबिट, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम रियलिटी, एंड दैट इज वेयर दिस ऑल थिंग स्टार्ट. ओके, मेकिंग द राइट चॉइसेस. अब सवाल ये कि भैया हमें शुरू में इतना समझ में आ गया कि चॉइसेस होना अच्छी बात है, ये समझ में आ गया कि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हैं तो हमको चॉइसेस हैं. चॉइसेस के वेन्यू मैंने आपको बता दिया कि चॉइस कहाँ कहाँ से आपको मिल सकती है, वो अपन ने पहले देख लिया. अब सवाल है कि मेरी जो चॉइस है ये राइट है कि रॉन्ग है, ये भी तो है. हाउ टू मेजर, पता कैसे चलेगा कि मेरे को एक अच्छी चॉइस है मेरे को, या अपन किसी को चॉइस देना चाहते हैं. मान लो आप कि छोटे भाई बहन, आपके पास बहुत पैसा आ गया जेब में और आप उसको प्यार करते हैं बहुत, और आप चाहते हो कि इसके लिए मैं कुछ करूं, तो आप उसके लिए आप उसको चॉइस देना चाह रहे हो. लेकिन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ डिसाइडिंग वेदर इट इज द राइट चॉइस और इट इज द रॉन्ग चॉइस. सो आई हैव रिटन डाउन फ्यू पॉइंट्स. और एक मैं बात आपसे सबसे बोलूँगा कि ये जो भी मैं दे रहा हूँ दीज आर जस्ट इंडिकेटर्स, क्योंकि सोशल साइंस इतना बड़ा फील्ड है, ये हर व्यक्ति अलग होता है, हर एक की चॉइस अलग होती है और हर एक की सोच अलग होती है, हर चीज़ दुनिया में अलग होती है. तो इसलिए ये तो मुझे पता है, तो इसलिए हम सिर्फ एक इंडिकेशन दे सकते हैं कि भाई ये संभावना है, आप इन पर सोचो. अपन देखते हैं, बी रियलिस्टिक. फर्स्ट ऑफ ऑल बी रियलिस्टिक मीन्स हम हैं बहुत ही एक सपोज एक बहुत हाई प्रोफाइल एलिटिस्ट, एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है. एरिस्टोक्रेटिक मीन्स जो राजे रजवाड़े होते हैं इस टाइप के, दे आर कॉल्ड एरिस्टोक्रेटिक. और न्यू रिच, मतलब आपके घर में BMW भी है और वो जो भी नई नई कारें होती है, आई डोंट इवन नो, ऑडी है शायद, ऑडी है, एंड सो मेनी ऑल कार्स आर देयर, है ना. अब आपके दिन में एक दिन आपने एक वीडियो देख लिया और आपके दिल में आया कि पापा मैं जाके झोपड़पट्टी में रहूँगा. तो उसमें क्या हो रहा है कि आपने कहा कि साहब मैं जाके झोपड़पट्टी में रहूँगा. आपने एक चॉइस की, क्योंकि आपने एक फिल्म देख ली कि गरीबों का ऐसा होता है, गरीबों का, अमीरों ने अपनी दौलत गरीबों को बांट देनी चाहिए, सब में दौलत एक जैसी बांट देनी चाहिए. तो आपके बड़े दिल में करुणा का समुद्र आ गया, तूफान आ गया. आपने कहा नहीं साहब मैं तो जाके वहीं रहूँगा, गरीबों की झोपड़पट्टी में रहूँगा, उनके जैसा रहूँगा. तो ये क्या होगा, इज इट रियलिस्टिक, क्या पॉसिबल है? आप 2 दिन घर में ज़मीन पे सो के तो देखो, आपके घर में बिना गद्दे के, बिना रजाई के, और अच्छी टाइल्स हो, भले कालीन पे भी सो के देखो, सो के तो देखो ज़रा. तो वी आर नॉट रियलिस्टिक, मेनी टाइम्स वी आर नॉट. या कई मुंगली लाल होते हैं जैसे कि मैं तो सीधे मिलियनर बनूंगा, मैं कुछ भी धंधा नहीं करूँगा, सीधे अरबपति बनूंगा. ऐसा नहीं होता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चॉइस जो चूज़ करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी वेरी रियलिस्टिक पर्सन, और आपको एक रियलिस्टिक बात करनी चाहिए. और आप रियलिस्टिक होगी नहीं, कैसे पता चलेगा? वही जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप सोशल मीडिया पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, ब्लॉग्स पढ़िए, दूसरों के एक्सपीरियंसेस पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैं रियलिस्टिक, मतलब मैं कुछ हकीकत की बात कर रहा हूँ या बिल्कुल ही बेसिर पैर की बातें कर रहा हूँ. देन बी रीजनेबल. रियलिस्टिक का ही दूसरा भाई है. रीजनेबल मतलब क्या कि भाई जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आप यूथ हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं मेरिट में आ जाऊँ, लगता है कि मैं IAS कर लूँ. तो भैया IAS अपने परिवार में कोई आगे पीछे 4-6 पीढ़ी में इधर उधर दूर दूर तक, मतलब 100 किलोमीटर उधर, 100 किलोमीटर इधर, कोई है क्या? है कोई है ना. हमको न कोई IAS हमारी फैमिली में है, ना हमारे यहाँ पे कोई पढ़ने लिखने का माहौल है. मतलब ऐसा नहीं है कि वो होना बहुत बड़ी या वही ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. तो न कोई एनवायरनमेंट है, न कोई हमारे पास एस्पिरेशन है, न कोई उस तरह की लीनेज है, ना उस तरह का कोई हमारे सर्कल है कि हम एक दूर भी किसी IAS को देखा हो ज़िंदगी में, जाके मिले हो कभी. तो बी रीजनेबल. आपको जो आप एक रीजनेबल बात करो कि भाई आई विल गो गेट ट्रेनिंग एंड आई विल डू समथिंग. ये समझ में आने जैसी बात. लेकिन आप सोचोगे कि मैं घर बैठे बैठे सब कर लूँगा, कहीं न्यूज़ पर सोशल मीडिया में पढ़ लिया कि वो चपरासी की लड़की है और उसने पहले अटेम्प्ट में IAS हो गई. अरे वो IAS हो गई तो किसी कोटे में हुई होगी, क्या आप उस कोटे में हो क्या, पहली बात. या उसने वाकई कितने साल से 6ठी-7वीं से पढ़ाई की होगी, उतना हार्डवर्क किया होगा, या उनके क्या सर्किल है आपको थोड़ी पता है. तो इसलिए बी रीजनेबल. आप अपने जो रिसोर्सेस हैं उसके संदर्भ में बात कीजिए. सिमिलरली बी रिस्पॉन्सिबल. ये अक्सर होता है
आई विल गिव वन एग्जांपल, आई डोंट नो, दे देते हैं। जैसे एक बहुत बड़े फिल्म स्टार है गोविंदा, अभी तो रिटायर्ड से ही हैं, पर पहले एक ज़माने में 80s में बहुत ही बड़े फिल्म स्टार, वन ऑफ द बिग सुपरस्टार्स। उनके फादर मिस्टर आहूजा, ही वॉज ए फिल्म फाइनेंसर, ही फाइनेंस्ड ए मूवी। तो उनको सब लोग कह रहे थे कि आप मूवी फाइनेंस मत करो, ही फाइनेंस्ड, पर अल्टीमेटली सब कुछ उनका बिक गया। तो अब क्या हुआ, द फैमिली विच वॉज लिविंग इन मुंबई, सेंट्रल मुंबई, जो मुंबई रहते थे मेन मुंबई में, उनको उठ के विरार जाना पड़ा। एंड होल करियर, इन द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर, गोविंदा हैड टू कम्यूट फ्रॉम विरार टू बॉम्बे सेंट्रल, जो भी स्टूडियो जहाँ भी होते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल होना ये होता है। आपने सब कुछ एक चीज़ पे लगा दिया, वो चीज़ डूब गई। सो आप चॉइसेस रखिए, लेकिन उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबल रखिए। कीप समथिंग टू फॉल बैक ऑन, कुछ ऐसा रखिए कि जो आपको ऐसा नहीं लगी कि मैं क्या कर बैठा। आप अगर पर्सनल चॉइसेस रखते हैं तो रिस्क भी पर्सनल रखिए, उसमें सबको ज़मीन पे लाने का प्लान मत रखिए, या उसमें ऐसा मत रखिए कि आगे वाली पीढ़ी फिर बिल्कुल सड़क पे खड़े होकर मदद मांगे। गिव सफिशिएंट रिएक्शन टाइम, ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे भी आपको अच्छे रिलेशन रखना है, यहाँ पे भी आपको अच्छी इमेज रखनी है, यहाँ पे भी आपको अच्छा काम करना है। देयर यू ऑलवेज गिव सफिशिएंट रिएक्शन टाइम। कैसे, जैसे मुझे ये टॉक देनी है, तो अगर मेरे यहाँ पे मुझे अगर एक टॉक देनी है, तो जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया IPS एकेडमी की तरफ से कि आप ये टॉक दे सकते हो क्या, तो उन्होंने मुझे वेल इन एडवांस कांटेक्ट किया। फिर मैंने भी उनको बताया मैं किस किस फील्ड में कंफर्टेबल हूँ, या क्या क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, क्या क्या मैं ले सकता हूँ। फिर उन्होंने बोला ये डेट्स आपको सूट करती हैं क्या। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, वी आर गिविंग ईच अदर सफिशिएंट रिएक्शन टाइम। ये नहीं कि हम हो गए सर कल सुबह आ जाए, तो ऐसे कैसे आ जाए। इतने स्टूडेंट सामने बैठे हैं मेरे, such mature audience are there, and they wanted to learn something very important related to their life. I cannot just walk into and speak whatever comes to my mind. तो therefore जहाँ पे भी आपको अपनी चॉइस के लिए गर्व करना है, या आपको चाहते हो कि आप अच्छी चॉइस करो, तो ऑलवेज हैव रिएक्शन टाइम एंड गिव रिएक्शन टाइम। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे सबको आपको एक नई हॉबी डेवलप करनी है। सपोजिंग जैसे यूथ में सॉरी कई लोग होते हैं जो थोड़ा एब्यूजिव होते हैं, बात बात में गाली देते हैं, बाद में बुरा लगता है कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। चाहे जिसको चाहे, जो माँ बाप पे कई अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी होते हैं, कुछ फेंक के मार देते हैं, खाने की थाली फेंक देते हैं उठा के। सो मेनी टेंट्रम्स आर देयर, और उसके बाद में आपको लगता है कि यार मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाद में आपको रियलाइज़ होता है। लेकिन आपको सुधारना है, तो अब ये मत बोलो कि कल सुबह से मैं ऐसा नहीं करूँगा, कोई भी नहीं मानेगा। आप ये बोलो कि हाँ आज मैंने बहुत सोचा इस मुद्दे पे, और अब धीरे धीरे 1 मार्च तक मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर लूँगा। ये समझ में आने की बात। बी रीजनेबल, बी रीजनेबल, गिव सफिशिएंट रिएक्शन टाइम। आपको अपने आप को एक बहुत प्रॉपर रिएक्शन टाइम देना चाहिए। कोई भी दुनिया में मानेगा कि भाई आप सपोज आई वांट टू रिड्यूस 15 kg, अब मैं बोलूँगा कि कल से मैं यहाँ से राजवाड़ा तक दौड़ते हुए जाऊँगा IPS एकेडमी से, और मैं 15 kg 1 महीने में रिड्यूस कर दूँगा, इम्पॉसिबल। और कर भी दूँगा तो बाकी 10 बीमारियाँ लेके मैं बैठ जाऊँगा, कभी घुटने फ्रैक्चर हो जाएंगे, कभी हार्ट अटैक आ जाएगा। सो इट ऑलवेज हेल्प्स, यू हैव अ चॉइस, बट इफ़ यू वांट हैव गुड चॉइस टू अदर्स आल्सो, आपके मित्र को, आपके छोटे भाई बहन को किसी से गलती हो गई, आपको पता लगा सामने से गलती हो गई, वो सुधरना चाह रहा है, तो उसको आप टाइम दीजिए, रिएक्शन टाइम दीजिए। सो दैट इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ़ यू वांट टू गिव, इफ़ यू वांट टू मेक अ चॉइस और यू वांट टू गिव अ चॉइस। एंड फाइनली हैव अ बिगर पर्सपेक्टिव टुवर्ड लाइफ। मतलब ज़िंदगी सिर्फ रुपये पैसे नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ कपड़े लेते नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ हाँ ही नहीं है। लाइफ इज़ हैविंग सो मेनी डायमेंशंस। कभी आप किसी को सिर्फ एक पर्टिकुलर डायमेंशन से मत मेजर कीजिए। जब को मेजर करते हैं, कास्ट वालों से दोस्ती करूँगा, मैं इसी सोशल स्टेटस वालों से दोस्ती करूँगा, मैं इसी एकेडमिक लेवल, जैसे मैंने सोचा सपोज कि मैं सिर्फ जो PhD हैं उनसे बात करूँगा। मेरा बहुत 60 साल का हो गया, अब मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, अब मैं सिर्फ उनसे बात करूँगा जो कम से कम PhD होगा, तो मेरे घर में आना, नहीं तो बात मत करना। क्या होगा, कुछ दिन बाद मुझसे कोई भी बात नहीं करेगा। तो हमको ज़िंदगी में एक बड़ा पर्सपेक्टिव रखना पड़ता है। सबको ज़िंदगी में राइट है जीने का, सबको चॉइस ऑफ लाइफ इज़ देयर। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कंसिडरेट, और हमको जीवन को एक
बड़े पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से. सो हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन एंड दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर्स, दिस आर माई कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी. लेकिन कृपया करके अगर कोई कॉन्टैक्ट करता है तो थोड़ा संदर्भ बताइएगा कि हाउ डू यू कम टू नो, एंड बिकॉज अब मेरे इतने स्टूडेंट हो गए कि मैं आई हैव फॉरगॉटन ऑल टुगेदर. सो थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. Tomorrow we'll meet with a new topic, again same time, same place. Dr. Moghe here.